Hello students, in today's video I'm going to talk about the summary, the story, the highlights, the main points, the major events of the story of second term, that is Rat Trap. So today I'm not going to teach this chapter, rather I will be giving you major points so that if you want to have a last revision when you won't be having that much time to read the chapter thoroughly, so you can just listen to it. And today I will be talking about the events and the major happenings page wise, so that if you want to get more information you can read that particular page. So when we start this story, first of all we should know that the story is about poor rat trap seller. And now the important points which we are to remember. First of all, that is, the line is written in the chapter from where we get to know that he sometime indulged in some thievery also. Means he had to steal sometime. And it is written, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep his body and soul together. Now what does it mean? Keep his body and soul together. अपने आप को जिंदा रखना. कीपिंग बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स खुद को जिंदा रखने के लिए कभी कभी उसको बैगिंग करना पड़ता था, और बैगिंग से भी अगर कुछ नहीं मिलता था तो कभी कभी उसको चोरी भी करना पड़ता था. क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा गरीब था और उसकी रैट ट्रैप ज्यादा बिकते नहीं थे, सो उसका कोई प्रॉफिट नहीं था. सो इसलिए उसको ये दोनों चीजें कभी कभी करनी पड़ती थी. दिस इज वन मेजर थिंग ही हैड टू रिसॉर्ट. देन वी कम टू दिस फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दिस रैट ट्रैप सेलर, और वी कैन से व्हेन वी टॉक अबाउट द पैथेटिक कंडीशन. अगेन इट इज पेज 32. His clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. कि अगर आप उसको सामने से देखो तो किसी को भी अंदाजा लग सकता है कि वो कितना गरीब था. पहनने को कपड़े नहीं, खाने को खाना नहीं, सो इतना ज्यादा गरीब था वो. एंड इन हिज आईज ओनली हंगर ग्लीम्ड. आंखों से देख के लगता था कि वो भूखा है. सो मे बी दैट्स व्हाई ही हैड टू रिजॉर्ट टू बैगिंग and sometime even thievery. Then because of this only, इस तरह के हालात थे कि कुछ बिकता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, कभी कभी भीख से भी नहीं मिलता तो चोरी करना पड़ता है. सो ऐसे हालात में जब वो पूरा दिन सड़कों पे चलता रहता था अपने रैट ट्रैप बेचने के लिए, suddenly one day one theory came to him. He suddenly started thinking that this whole world is actually a big rat trap. Page number 33. Whole world about him, whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. कि ये बड़े बड़े शहर, सब कुछ एक्चुअली ये एक रैट ट्रैप है. ये देखने में लगता है बहुत सुंदर चीजें हैं, बट ये जमीनें और ये बड़े बड़े समुद्र, ये पानी, ये नेचुरल ब्यूटी, अब उसको लगने लगा कि ये एक्चुअली एक तरह का रैट ट्रैप ही है. और मोर ओवर ही थॉट दैट पीपल सेट बेट्स फॉर अदर पीपल. अगेन पेज नंबर 33. ये उसको लगने लगा कि एक्चुअली इस दुनिया में लोग दूसरों के लिए शिकार तैयार रखते हैं, शिकार करने को तैयार रहते हैं. एंड दे पुट बेट्स, ताकि शिकार उसके लालच में आगे आए. और इस दुनिया में कैसे बेट्स है, बेट्स किस तरह से, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बेट्स इन व्हाट फॉर्म. बेट्स मीन्स रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ऑल दीज आर बेट्स. कि अगर आप गरीब हैं और आपके पास घर नहीं है रहने को, आपको कोई शेल्टर ऑफर करेगा तो शायद आप बहुत जल्दी मान लोगे. आपको नहीं, आप पूछोगे कि उसके बदले में आपको कुछ करना तो नहीं पड़ेगा, और आप कहोगे हाँ हाँ मुझे जो भी करना, आई एम रेडी, जस्ट गिव मी शेल्टर. If you are hungry, naturally you will be ready to do anything for food. So आपसे कुछ भी गलत काम भी करवाया जा सकता है, and you will be ready because you need food, you need shelter. Okay, so these all will be baits.
And this also he understood. He himself understood. Page number 33, it is written, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed on him. और अगर ये बेट जो कि शेल्टर के वे में आता है, फूड के रूप में आता है, riches, so all these actually are baits. And if you do not control yourself, if you let yourself be tempted, naturally you will be caught. And this is what he always now thinking, that the whole world is actually ready to catch others in the trap. So ये उसके दिमाग में एक फिलॉसफी चलने लगी कि पूरी दुनिया ही एक्चुअली दूसरों को फंसाने को तैयार रहती है, कोई हेल्पफुल नहीं है. क्यों उसको लगता है? क्योंकि उसको लगता है मेरा तो रैट ट्रैप कोई परचेज ही नहीं करता, तो इट मीन्स कैसे कहें कि दुनिया हेल्पफुल है? नहीं है कोई हेल्पफुल. देन वन डे ही नॉक्स एट अ डोर ऑफ अ क्रॉफ्टर. ऐसे ही चलता चलता जहां रात होती थी वहीं रुक जाता था. एक दिन रात होने वाली थी, सामने एक किसी का घर दिखा. ही नॉक्ड एट दिस डोर एंड इट वाज द हाउस ऑफ अ क्रॉफ्टर, एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड that he was welcomed. Okay, he naturally he got more than expected. क्या उसको वहां मिला? Smiling, welcoming face, tobacco, supper, and this person, this host even played majolis also, a card game with him. Okay, and not only he gave all these things and played with him, he even talked about his money sources also. And not only talked of the money sources, he even showed that 30 roner which were in a leather pouch. So all this thing he got from this host, and he got attracted towards the money, and that's why he could not control himself, could not resist himself, and then he stole the money. This is one thing. Okay, this is, we can say, this is the first portion where he knew it very well that this money can be a kind of bait, but even then he could not resist this temptation, and he stole that money. Then after taking money, he takes the route. Naturally he leaves the house and he takes the route through the woods. मनी चुरा लिया क्रॉफ्टर का और सोचा कि रोड से चलेगा तो हो सकता है क्रॉफ्टर को पता चल जाए और पुलिस आ जाए पीछे से, तो बेटर होगा जंगल में घुस जाओ, तो शायद कोई ढूंढ नहीं पाएगा. So he took the route through the woods in order to avoid police, but later on could not get out of the forest as it was a confusing forest. अब उसको बाद में पता चला कि ये फॉरेस्ट इतना सिंपल फॉरेस्ट भी नहीं था, बहुत घना जंगल, बहुत कंफ्यूजिंग जंगल है. वो एक रास्ता पकड़ता है, सोचता है शायद मैं बाहर निकल जाऊंगा, थोड़ी देर बाद पता चला घूमता हुआ वहीं वापस आ गया. ये रास्ते इतने घुमावदार थे कि उसको कुछ टाइम के बाद पता चली शायद यहाँ से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है. एंड अल्टीमेटली ही एक्सेप्टेड दैट मे बी हियर ओनली ही विल डाई. ही एक्सेप्टेड हिज अप्रोचिंग एंड. पेज नंबर 35. Okay, he becomes hopeless, and then he curses himself for the greed. अब उसको लगा कि मैं हमेशा सोचता था कि लोग थोड़ा सा भी अगर अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, टेम्पटेशन हो जाती है उनको, तो वो नेचुरली फंस जाते हैं और लगता है यही काम मैंने किया, मैं खुद फंस गया. एंड नाउ मे बी हियर ओनली टुडे, दिस नाइट ओनली आई विल डाई, बिकॉज रात होने लगी है और जंगल में तो बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होंगे और नेचुरली I will die here only. I will be eaten up by some animal. So he now accepted his approaching death. But then only he heard the thumping of hammer strokes. वहीं लेट गया, सोचने लगा मैं थक गया हूँ सारा दिन चल चल के, अब यही सोते हैं रात में, शायद सोते में मैं मर जाऊंगा, बिकॉज मुझे तो नहीं लगता मैं रात भर यहाँ जिंदा रह पाऊंगा. बट देन ओनली ही हर्ड सम थम्पिंग. लेटा तो उसको थम्पिंग की आवाज आई, समझ आ गया ये तो ऐसा लग रहा कोई हैमरिंग कर रहा है, हैमर स्ट्रोक्स हैं. एंड देन ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द हैमर स्ट्रोक्स. साउंड का पीछा किया, ये कहाँ से आवाज आ रही है. एंड देन ही अल्टीमेटली रीच टू वन रामशो आयरन वर्क्स, आयरन मिल उसका नाम था, द रामशो आयरन वर्क्स. पेज नंबर 35. सो ही रीच देयर एंड ही एंटर्ड ओवर देयर एंड ही सॉ 2 people वर्किंग. ही जस्ट टुक परमिशन फ्रॉम देम that he wants to stay for that night. Okay, and they permitted also.
and then he sleeps near the furnace, क्योंकि वो तो फर्नेस जला के गर्म कर रहे हैं, पिग आयरन उसको नेचुरली शेप दे रहे हैं, तभी हैमरिंग हो रही थी। और उसने कहा कि मैं एक रात सोना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ही स्लेप्ट वेरी नियर द फर्नेस, और हैट उसने अपने फेस पे दे लिया, कवर कर लिया, बिकॉज फर्नेस की लाइट उसकी आंखों को शायद तंग कर रही थी, उसको मुश्किल हो रहा था सोने में। सो ही कवर्ड हिज आईज विद द हैट। इन द मीन टाइम द ऑनर ऑफ दिस मिल, द आयरन मास्टर, he came. He had this habit of taking rounds, surprise rounds. So he came and he saw that there is somebody else in the mill. दो लोग तो उसने वर्कर्स रखे हुए हैं, बट ये कोई और भी है, who is sleeping very near the furnace. So this owner, just to get a better view of the person, okay, he just removed the hat from the face, and when he looked at the face of this person, he mistook him as his friend. Okay, that is Nils Olof. रोशनी कम थी, फर्नेस की रोशनी थी, उस रोशनी में ऐसे लगा कि शायद ये तो उसका अपना फ्रेंड है पुराना, जिसका नाम है निल्स ओलॉफ, और उसने उसको निल्स ओलॉफ समझ लिया। और उसने कहा नहीं नहीं, तुम यहाँ कैसे, यू कम टू माई होम। बट दिस ऑन द अदर साइड, दिस पेडलर, नेचुरली ही न्यू दैट ही इज नॉट निल्स ओलॉफ, बट इवन देन ही कीप्स मम। वो चुप रहता है, सोचता है ठीक है, शायद चुप रहने से कुछ और मनी मिल जाए। अब ये मुझे अपना फ्रेंड समझ रहा है और बड़ा तरस आ रहा है इसको मेरे ऊपर कि मैं तो गरीब हो गया हूँ, तो शायद कुछ मनी से हेल्प भी कर दे तो मनी तो मिल जाएगी। सो वाई टू टेल हु आई एम। सो दैट्स वाई ही ऑल्सो कीप्स मम, एंड दैट्स वाई दिस आयरन मास्टर, टेकिंग हिम हिज ओल्ड फ्रेंड, ही इनवाइट्स हिम दैट कम टू माई होम। बट this man was actually more interested in money rather than going to his home. So he said, no, I don't want to come to your home. But the iron master then, because he literally took him as his friend and he wanted to help him, that's why he went away from there. But he sends his daughter Edla Wilmanson. He thought that maybe he will listen to Edla, so he sends Edla Wilmanson. And naturally this time, this RATTRAP seller, peddler, he couldn't refuse the invitation by Edla Wilmanson, and ultimately he goes with her to this iron master's home. And on the other hand, iron master is very happy. He now, early in the morning next day, they were waiting for him for the breakfast at the dining table, and this iron master, he talks to his daughter and he plans to help him financially, means to start some new business, okay, for this friend. But now when this RATTRAP seller, he comes after taking bath and wearing good clothes which were given by this iron master only, when he comes in the dining room for the breakfast, at once in the broad daylight he is recognized. अब वो नाश्ते के लिए नहा धोकर शेव करके आया, अच्छे कपड़े पहने आयरन मास्टर के ही, लेकिन आते ही एंट्री पे ही आयरन मास्टर ने पहचान लिया, ओ माय गॉड, ये तो निल्स ओलॉफ नहीं है, ये तो कोई और है। नेचुरली this is page number 39, and then this iron master, he gets angry and threatens to call police, but decides otherwise as it happens to be Christmas Eve. बिकॉज डॉटर ऑल्सो इंटरवीन्स कि ये तो क्रिसमस का टाइम है, हमने इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर में बुलाया, सो वाई टू कॉल पुलिस, आज पुलिस रहने दो, ओके, एंड प्लीज लेट हिम एटलीस्ट सेलिब्रेट क्रिसमस विद अस. सो शी इंटरवीन्स. पेज नंबर 40. Edla Wilmanson intervenes and requests her father to let him stay for Christmas celebrations. She pleads that he does not ever get respect anywhere and everywhere he is chased away. This is what she said, कि सब जगह से इसको भगा दिया जाता है, इसको तो कभी कोई रिस्पेक्ट देता ही नहीं है. And he also as a human being deserves at least a day of peace, especially on Christmas. So let him stay here. So this iron master, he permitted. He said, okay, for this day, for Christmas, he can stay. And on the other hand,
the whole day this peddler, he remains there without bothering anybody. He didn't disturb anybody, and the whole day, moreover, he was sleeping and sleeping only. He was called again and again for certain things, and then he would go and sleep. सिर्फ सोता रहा पूरा दिन. And then at the time of the supper, he's called for food, and there he goes and he saw that there are so many people gathered over here. He thanks everyone. सबके पास जाता है खाना खाने के बाद, सबको thanks करता है. Christmas greetings, Christmas time, and then especially वो thank करता है एडला विलमेंसन का, who had shown that much faith in him, and he was told to keep that suit of iron master also. जो उसने कपड़े पहने थे, एडला ने बोला आप ये कपड़े अपने साथ रख सकते हो, आपके लिए ये गिफ्ट है, आप इसको एज ए गिफ्ट ले लो, और ये कपड़े आपको वापस करने की जरूरत नहीं है. एंड देन इवन मोर शी सेड दैट नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको क्रिसमस सेलिब्रेट करना हो हमारे साथ आप आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम. सो शी इन्वाइटेड फॉर द नेक्स्ट क्रिसमस ऑल्सो. पेज नंबर 41. Then next day, when Edla and her father go to church for Christmas prayer, they get to know the real identity of the peddler, that he had stolen Crofter's money. ये उनको वहां जाके चर्च में पता चलता है कि एक रैट ट्रैप सेलर है जो कि एक्चुअली चोरी भी करता है. और क्रॉफ्टर भी उस चर्च में आया था, उसने बताया कि उसने 30 रॉनर चुरा लिए. एंड नाउ दिस फादर एंड डॉटर, they got to know from there that this is not only poor peddler, but this is not only the person who has deceived them. Actually, he is thief also. अब वो घर आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब तो हमने उसको घर में अकेला छोड़ा है, हम तो चर्च में आ गए, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि वो सो रहा था, तो इसका मतलब हो सकता है वो पीछे से उठकर चला गया होगा, और मे बी बहुत सारी चीजें हमारी भी चुराई होंगी. सो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 41 and 42. And naturally now they are worried for their belongings also, as they had left him all alone sleeping in the house. But when they reached home, they were told by their servant that the peddler is gone, but he has not stolen anything. Rather, he had left a Christmas gift for Edla Wilmenson. This is given on page number 42. अब वो घर पहुंचे, जल्दी से पूछा कि वो है कि चला गया. सर्वेंट ने कहा नहीं, वो तो चला गया, बट एक गिफ्ट छोड़ के गया एडला विलमेंसन के लिए. And when she opened the gift, Edla found a rat trap and 30 roner in that trap, and then a letter also. और उसने लेटर में क्या लिखा था? In this letter, he confesses his crime of stealing money from Crofter and requests Miss Edla Wilmenson to return it to the Crofter. And he thanks Edla for showing faith in him, because Edla Wilmenson's trust in him had given him courage to raise to the level of Captain Von Stolle. एंड में उसने लेटर को एंड किया था, साइन किया कैप्टन वॉन स्टॉले. इट मीन्स जो नील्स लॉफ है वो रेजिमेंटल कॉमरेड था इसके फादर का, आयरन मास्टर का, और वहां पर वो कैप्टन था जब उसने जॉब छोड़ा, और उसने अपना लेटर भी साइन किया कैप्टन की तरह. उसने कहा यू ओनली रेज्ड मी टू द स्टेटस ऑफ कैप्टन. आपने मुझे इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दिया पूरा दिन, ये जानते हुए भी कि मैं आपके फादर का फ्रेंड नहीं हूँ, आपने फिर भी मुझे उतना ही रिस्पेक्ट दिया जो कि शायद आप एक अपने फादर के फ्रेंड को देते जो नील्स लॉफ होता अगर रियल में कोई. यहाँ पर मैं नील्स लॉफ नहीं था, बट इवन देन यू गेव मी दैट रिस्पेक्ट. एंड नाउ आई कैन से दैट मे बी आई एम एबल टू नाउ कन्फेस माई मिस्टेक्स, एंड आई एम एबल टू नाउ राइज टू द लेवल ऑफ दैट कैप्टन. एंड देन ही प्रॉमिसेस दैट ही वुड try to live the life of a thorough gentleman, that I will remain like this only because it's your love only who has raised me to this level. So I hope अब आपको पूरी स्टोरी क्लियर है विद पेज नंबर. पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट दे दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एंड आफ्टर दिस मे बी आपको स्टोरी पूरी क्लियर है. कोशिश करो पूरा चैप्टर पढ़ो, अदरवाइज ये जितने पॉइंट्स हैं चैप्टर वाइज इनको जरूर थॉरो कर लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन जब रिटर्न में आएगा तो आपको मुश्किल नहीं होगा इफ यू नो द होल डिटेल. थैंक यू.